So today I want to share with you some of the new covenant truths. और आज मैं आपसे जो बांटने वाला हूँ वो नई वाचा की सच्चाई है। Some of the truths that have really liberated me. और जो कुछ सच्चाई है नए नए वाचा की, उसने सचमुच मुझे आजाद किया है। So when we read in Hebrews chapter 8, और जब हम इब्रानियों उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं, we see that verse 7 is written, if the first covenant had been faultless, there would have been no occasion thought for a second. और वहां पर लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोषी होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। Written in verse 8, finding fault with the old covenant. और 8वें वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, देख, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। So it is very interesting that God gave a faulty covenant to man. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने एक फॉल्टी कवनेंट मनुष्य को दिया था। See, whatever God does is perfect, but why he gave a faulty covenant through Moses? और जो भी परमेश्वर करता है वो सिद्ध होता है, लेकिन उसने क्यों मूसा को एक फॉल्टी वाचा दी? See, the reason is because man is extremely self-confident. और इसका कारण यह है कि मनुष्य जो है वो स्वयं पर निर्भर है। So, in order to break the self-confidence of man, God gave him a covenant which cannot be fulfilled. और मनुष्य का जो स्वयं पर निर्भरता है उसे तोड़ने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसी वाचा दी जो कभी भी पूर्ण न हो सकती थी। It is around 1400 BC God gave that और law. ये जो 1000 BC में इस नियम को या इस वाचा को दिया गया था। So God gave 1400 years for man to try and fulfill it. और परमेश्वर ने 1400 वर्ष मनुष्य को दिए ताकि वो कोशिश करे इसे पूर्ण करने के लिए। And to come to the conclusion that it is impossible to reach, to fulfill that covenant. और ताकि वो अंत में वो इस कंक्लूजन पे आए कि इस वाचा को पूर्ण करना असंभव है। See, it is written in Acts 15:10, a sentence which Peter is telling. और प्रेरितों के काम उसके 10 विच 15:10, brother. प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय उसके 10 में ऐसा लिखा है। It's about the first covenant, about the law. Peter is telling it's a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear. और वहां पर पतरस कह रहा है कि ये हमारे गर्दन पर ऐसा जुआ है जिसे हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। See, even today when we hear imagine we hear a message on Sunday, the immediate thought that comes to us is, okay, I'm going to do it. और कल्पना कीजिए कि जब भी हम रविवार की सभा में कोई संदेश को सुनते हैं तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। No, I'm going to do it. कि मैं इसे कर सकता हूँ, माफ कीजिएगा। So, but only when we really try to live that life, we find that it is totally impossible. और तभी जब हम इस तरह का जीवन जीना शुरू करते हैं, हम पाते हैं कि ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। Many times it takes years for God to break that self-confidence in us. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लिए वर्षों लग जाते हैं ये स्वयं पर निर्भरता हमारे जीवन के अंदर तोड़ने के लिए। So, I want to share with you some of the truths of the new covenant. First is we read in Hebrews 8:12.
और मैं आपसे नई वाचा की कुछ सच्चाइयों को बांटना चाहता हूँ। पहला है इब्रानियों उसका 8 अध्याय उसका 12 वचन। It's written here, for I will be merciful to their iniquities, I will remember their sin no more. और वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। See, there is a big difference between Old Testament forgiveness and the New Covenant forgiveness. और देखिए वहां पर नई वाचा का जो क्षमा है और पुरानी वाचा की जो क्षमा है उसमें बहुत अंतर है। In the Old Testament, sin was only covered, like, for example, there is a dirt, you can cover it with a cloth. पुरानी वाचा में जो पाप था उसे केवल ढांपा जा सकता था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मिट्टी है हम उसको ढांप सकते हैं। But when we come to the New Covenant, whatever sin is there, when we confess it, forsake it, by the blood of Jesus, He cleanses us. लेकिन जब हम नई वाचा में आते हैं, जो भी पाप है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया या धो दिया जाता है। Not only that He cleanses us, He also tells us that I will remember your sin no more. और केवल वो धोया ही नहीं जाता या साफ ही नहीं किया जाता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपके पाप को अब याद नहीं रखूंगा। See, when we read in Hebrews chapter 10, और जब हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय में जब पढ़ते हैं, it's written the law, since it is a shadow of the good things to come, not the very form of things, verse 1, can never by the same sacrifices year by year, which they offer continuously, make perfect those who draw near. इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका पहला वचन, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। So here it's written a very important truth. In the old covenant, you can never be perfect. That is perfect in your conscience. और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहा गया है कि पुरानी वाचा के अंदर हम कभी भी अपने विवेक को शुद्ध नहीं कर सकते या विवेक में सिद्ध नहीं हो सकते थे। See, many times when we hear the word perfect, people get afraid. और कई बार जब हम सिद्ध जो वचन है या जो सिद्ध शब्द है उसको जब सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं। But for example, how many of us want a health where you have got a imperfect health? You don't want that. You always want a perfect health. और हम में से कौन है जिसे अच्छी सेहत नहीं चाहिए, और क्या कितने लोग कहेंगे कि हमें असिद्ध सेहत चाहिए? नहीं, हम में से कोई भी ऐसा असिद्ध सेहत नहीं चाहेगा। Say, for example, if you have got little cold and cough, let's continue. I'm not going to do. If TB is there, okay, that is let continue. We never say that we want perfect health. We take medicines and make sure that we have got perfect health. उदाहरण के लिए अगर हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हम कभी ऐसा नहीं कहते कि इसे चलने दीजिए, या अगर हमें पता चलता है कि हमें टीबी हो गई है तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि इसे चलने दीजिए। नहीं, हम उसके लिए दवाई खाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो। The same way, what God gives us in the new covenant is we can have a perfect conscience. और इसी तरह परमेश्वर ने जो नई वाचा हमें दी है उस नई वाचा के अंदर हम एक सिद्ध विवेक रख सकते हैं। That means not that we are perfect and that we are not falling anywhere. That's not the meaning. और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिद्ध है, हम गिरते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम सिद्ध है। See, it does not mean that I don't fall into any sin. और इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी पाप में नहीं गिरूंगा। But the moment I fall, I quickly get up, confess my sin, repent, turn back to God, and make sure that I've got a perfect conscience. लेकिन इसका अर्थ है जिस क्षण मैं गिरता हूं मैं तुरंत मन फिराता हूं और परमेश्वर की ओर फिर से मुड़ता हूं और अपने विवेक को शुद्ध करता हूं। So I can say, we all should say, I'm not conscious of any sin in my life.
और हम सब ने कहना चाहिए कि मेरे विवेक में मैं किसी पाप को नहीं जानता। That means, imagine 10 minutes ago, imagine I fell into some sin. I repented, cleansed. God has forgiven me. God has forgotten me. He's not remembering that sin. My conscience is perfect. मान लीजिए कि 10 मिनट पहले अगर मैंने कोई पाप किया है, लेकिन मैं तुरंत उसे स्वीकार करता हूँ, उसका अंगीकार करता हूँ, मन फिराता हूँ, परमेश्वर से माफी मांगता हूँ और परमेश्वर तुरंत मुझे उस माफी को देता है और कहता है कि मैं अब तेरे पाप को अब याद नहीं रखता। और इसी तरह हम अपने विवेक को शुद्ध कर सकते हैं। So we read in verse 2 a phrase, Hebrews chapter 10, 2. It is written, uh, और हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके दूसरे वचन में ऐसा पढ़ते हैं। in English, the last part is written, we would no longer have a consciousness of sin. और इंग्लिश में जो आखिरी भाग है उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने विवेक के अंदर किसी पाप को नहीं जानेंगे। That means, say for example, imagine I did some sin last Friday, last Saturday. Man, I'm not conscious of that because God has cleansed and He has forgotten. He is not remembering. My conscience is perfect. So we have to live like that without any consciousness of sin. और देखिए, उदाहरण के लिए अगर पिछले शुक्रवार को मैंने या कोई पाप किया है, तो मैं उस पाप को स्मरण भी नहीं करता क्योंकि मेरा विवेक शुद्ध हो गया है, मैंने मन फिराया, इसलिए परमेश्वर अब ने मेरे जो पाप है उसको वो भूल गए हैं। इसी तरह हम हमारे विवेक के अंदर किसी पाप को नहीं जानते और इसी तरह हम अपने विवेक को शुद्ध रख सकते हैं। So that is why we have to remember 1 John 1:9 always. और इसीलिए हमने पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 9 वचन को हमेशा याद रखना चाहिए। If we confess our sin, God is faithful to forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. कि अगर हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। So that is the first thing that I want to share. That is, God never remembers my sin anymore. और ये पहली बात है जो मैं बांटना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे किसी भी पाप को अब आगे के लिए याद नहीं रखेगा। Now, second great truth of the new covenant is justification. और दूसरा जो सबसे बड़ा सत्य नई वाचा का है कि हम न्यायी ठहराए गए हैं। See, we have to remember that even if my sin is forgiven, with that I cannot go to God's presence. देखिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि इसके बावजूद कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, फिर भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। If I have to go to God's presence, I have to be perfect. अगर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है तो मुझे सिद्ध होना पड़ेगा। So e- even if my sin is forgiven, I cannot say that I'm faultless, I'm absolutely perfect before God. In देखिए, the sense that God is perfect. इसके बावजूद कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक सिद्ध व्यक्ति हूँ, केवल परमेश्वर ही सिद्ध है। That is why God gives me what we share in the church as justification by faith. इसीलिए परमेश्वर मुझे वो बातों को देता है जिसके विषय में हम कलीसिया में बात करते हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। We can read of that in Romans chapter 3. हम इसे रोमियो उसके तीसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। See, first of all, if you go through Romans, he's telling in chapter 1 of Romans about a person who is an outright sinner. और देखिए, हम रोमियो की जब पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके पहले अध्याय में हमारे विषय में कहा गया है कि मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ। And in second chapter of Romans, it is dealing with a religious person who is brought up in a good family. और जो दूसरा अध्याय है रोमियो का, उसमें एक जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है उसके बारे में कहा गया है। And then he comes to chapter 3, where he's telling
all people, whether a person who is brought up in a good family, a person who is an outright sinner, everybody is totally evil before God. और जब वो तीसरे अध्याय में आता है तो वो कहता है कि सभी लोग, जो भी व्यक्ति, अगर वो अच्छे परिवार में भी उसका पालन पोषण हुआ है, या कोई अच्छे परिवार में वो बड़ा हुआ है, तो वह भी पापी है। हम सब पापी हैं। See, if you go through Romans 10, Romans 3, verse 10, देखिए, जब आप रोमियो का तीसरा अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे, if we can just think of these 4 or 5 statements Paul is making. तो इस 4-5 जो वाक्यों को पौलुस वहां पर कहता है, उसे This देखिए। is true of every man. ये सभी मनुष्य के विषय में सत्य है। Whether you agree or not, this is 100% true about myself and yourself. चाहे आप इसे माने या ना माने, लेकिन ये 100% आपके विषय में और मेरे विषय में सत्य है। This tells of man's total depravity. और ये मनुष्य की जो पूर्ण डिप्रेविटी है, उसके विषय में बात करता है। That means we are totally gone cases. इसका अर्थ है कि हम पूरे तरह त्यागे गए हैं। Head to foot, there is nothing good in me. सर से लेके पांव तक मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। That's what he says. First of all, there is nobody righteous, not even one. और पहली बात वो वहां कह रहा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। No one can understand. That is, understand God. और कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। Nobody seeks after God. Yeah, कोई and भी, then no, everyone has become useless. और कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं है, और सभी लोग निकम्मे बन गए हैं। And like that, it is telling about each one of us. This is my condition. This is your condition. और इसी तरह यह हम सबके विषय में कह रहा है। ये मेरा कंडीशन है, और ये आप सभी का भी कंडीशन इस तरह का When है। I understand that, और जब मैं इसे समझ जाता हूँ, and when I agree, Lord, I'm totally a gone case. और मैं जब इस अवस्था को समझ जाता हूँ कि प्रभु, मैं पूरी तरह से एक त्यागा हुआ व्यक्ति हूँ। And then an amazing truth is written in chapter 3, verse 24. और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सत्य तीसरा अध्याय के 24 वचन में लिखा है। God justifies me. That means he declares me as if I've never sinned. और परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराता है, ऐसा कि मैंने कभी पाप किया ही ना हो। And this is a gift from God. और ये परमेश्वर का वरदान है I या cannot, उपहार है। I cannot earn it. I had to receive it as a gift. मैं इसे कमा नहीं सकता हूँ, मुझे इसे एक तोहफे के रूप में स्वीकार करना होगा। And it is by his grace, और ये उसके अनुग्रह से ही है, through the redemption which is in Christ, because of the work that Christ has done. और ये उसके अनुग्रह से ही है, जो रिडेम्पशन का काम उसने मेरे अंदर किया है। So when I receive it, I have to just receive it freely by faith. और जब मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे इसे केवल विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है। Then what God does is he clothes me with Jesus Christ. और फिर प्रभु क्या कहते हैं, वो मुझे मसीह की धार्मिकता को पहनाते हैं। That is what we read in Galatians 3:27. और यही हम गलतियों उसका तीसरा अध्याय उसके 27 वचन में पढ़ते हैं। It is written there, all of us have been clothed with Jesus Christ. और वहां पर लिखा है कि हम सब ने मसीह को पहन लिया है। So when God looks at me, he looks at me as if I'm as perfect as Jesus is perfect. और इसका अर्थ क्या है कि जब प्रभु मेरी ओर देखते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं कि मैं वैसा ही सिद्ध हूं जैसा प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। See, this is the way I have to stand before God every day.
और यही वो तरीका है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के समक्ष हर दिन खड़ा रहता हूँ। So imagine last week I met, there were 100 uh, temptations I faced. Imagine I overcame 90. और कल्पना कीजिए कि पिछले सप्ताह मैंने 100 ऐसे लालसाओं का या परीक्षाओं का सामना किया है और उसमें से मैंने 90 के ऊपर जय पाई है। Imagine, so I'm saying, okay, I got 90 out of 100. और मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मुझे 100 में से 90% मिले हैं। But if I try to go before God with that mark, I'll be rejected. और लेकिन अगर मैं 90% लेकर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहूंगा तो परमेश्वर मेरा इनकार करेगा या मुझे त्याग देगा। Another person got just 2 out of 100. और दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि उसे 100 में से केवल 2% मिले हो। But he also can stand before God by the righteousness when he is clothed with Christ. God looks at him also as he is perfect. और वह भी परमेश्वर की समक्ष इस तरह से खड़ा हो सकता है क्योंकि उसने मसीह को पहन लिया है और परमेश्वर उसे ऐसे देखता है जैसे वो सिद्ध है। A person who is born again yesterday, he also can stand before God only on the basis of God's righteousness. और एक व्यक्ति जिसका नया जन्म कल ही हुआ हो वो भी सिद्धता के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति के में खड़ा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी धार्मिकता को पहनाया है। I think it is John Wesley who said, uh, just before his death, he said something like this. और मेरे ख्याल से जॉन वेस्ली ने उसके मृत्यु के पहले इस तरह से कहा था। He worked for Jesus Christ tremendously in England. और उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही काम किया था इंग्लैंड में। He lived a very sanctified life for Christ. और उसने एक बहुत ही बलिदान पूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया था। But he said before his death, when I stand before God, I've got only one plea: Jesus died for me. लेकिन वो कहता है उसकी मृत्यु से पहले कि जब मैं प्रभु के समक्ष खड़ा रहूंगा तो मैं केवल एक ही बात कह पाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। Okay, I want to give you a small demonstration. देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। You can see this glass. आप इस ग्लास को देख सकते हैं। See, this glass is totally clean. और ये ग्लास पूरी तरह से साफ है। That is how we are when we are cleansed by the blood of Jesus. और इसी तरह हम होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। But I'm covering this with a white cloth. और मैं इसे एक सफेद कपड़े के साथ जब ढांप देता हूं। Now you cannot see this glass. अब आप इस ग्लास को नहीं देख सकते। You can see only this white cloth. आप केवल इस सफेद कपड़े को देख सकते हैं। Like that, we have to stand before God. और इसी तरह हमें परमेश्वर के समक्ष खड़ा रहना है। Today, tomorrow, 10 years from now, the day I stand before God, I have to stand before God clothed with his righteousness. और आज कल आज से 10 साल बाद भी जब मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा रहूंगा तो मुझे उसकी धार्मिकता को पहनकर ही उसके समक्ष खड़ा होना है। See, this righteousness has not entered inside. The righteousness of God has not entered inside this glass. ये जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो इस ग्लास के अंदर नहीं गई है अभी See, तक। what God wants is, from the time we are born again, slowly this righteousness of God should enter inside as we walk with Jesus Christ in fellowship with him. और धीरे धीरे परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है इस ग्लास के अंदर जाना चाहिए जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताते हैं। But what we have to remember is, with the righteousness which have entered inside, I cannot stand before God. लेकिन मुझे क्या समझना चाहिए कि उस धार्मिकता के द्वारा जो अंदर समा गई है उसके द्वारा मैं प्रभु के सामने खड़ा नहीं रह सकता। I can only stand before God with his righteousness. He clothes me मैं with his righteousness. मैं That is परमेश्वर the only way I can stand before.
और मैं परमेश्वर के समक्ष केवल उसकी धार्मिकता को पहनकर ही खड़ा रह सकता हूँ। Say, just imagine, we are sometimes when we come for singing or sharing God's word in the church, और मान लीजिए कि कई बार जब हम कलीसिया के अंदर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए या उसके गीतों को गाने के लिए जब आते हैं, see, sometimes we think, oh, I've done so many sins. How can I stand before God? और कई बार हम ये सोचते हैं या विचार करते हैं कि मैंने कितने पाप किए हैं, अब मैं प्रभु के समक्ष कैसे खड़ा रह सकता हूँ। Or we may think, okay, I lived a uh, relatively good life, so I can stand boldly before God. या इसके विपरीत हम सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा जीवन जिया है और मैं इसके द्वारा परमेश्वर के समक्ष खड़ा रह सकता हूँ। Both are totally faulty. और ये बहुत दोनों ही फॉल्टी है। The only way I can stand before God is by His righteousness. और केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा रह सकता हूँ, वो है उसकी धार्मिकता के द्वारा। We read of a parable Jesus said in Matthew chapter 20. और मैं उस दृष्टांत को पढ़ना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 20 अध्याय में कहा था। We read in here he said of a person has invited so many people to a dinner party. I mean, a king's dinner party. वर्स Yeah, it is. Matthew chapter 22. Sorry, Matthew chapter 22. माफ कीजिएगा, मत्ती उसका 22 अध्याय। Can you read from verse 8, brother? 8 to 10. उसके 8वें वचन से मैं पढ़ूंगा। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। See, अतः these people who are invited, that is we. We were the Gentiles. We are invited into the party of Jesus Christ. देखिए, यहाँ पर उन लोगों को जो जिनको निमंत्रित किया गया है वे हम हैं। हम जो अन्य जाति है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जो भोज है उसके अंदर निमंत्रित किया गया है। Now read verse 10 to 12, brother. अब मैं उसके 22 उसके 10 से 12 वचन तक पढ़ूंगा। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। So here we see a man who is maybe he is wearing a very nice cloth and he tried to come in with that cloth. Maybe he tried to live a very overcoming life. He tried to come to God's presence with that. तो यहाँ पर हम एक मनुष्य को देखते हैं जिसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं और उन कपड़ों के साथ उस निमंत्रण या उस भोज में वो आया है। और हो सकता है उसने एक बहुत ही जय पाने वाला जीवन को जिया है और उसके द्वारा उस भोज में वो आया है। We can say that person was rejected. He was put in hell. और मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति का इनकार किया गया और उसे नरक में डाल दिया गया। So we read that in verse 13 and 14. I हम उसे don't have time, so can read. हम उसे 13 और 14 वचन में पढ़ सकते हैं, अभी समय So नहीं है, आप उसे पढ़ सकते हैं what we बाद have to में। remember is whatever good I have got, I cannot stand before God. I can stand before God only with His righteousness. और इससे हमें क्या याद रखना चाहिए कि कितनी भी मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्यों ना हो, मैं उसके द्वारा परमेश्वर के समक्ष नहीं खड़ा हो सकता। मैं केवल परमेश्वर की अच्छाइयाँ द्वारा या परमेश्वर की धार्मिकता द्वारा ही परमेश्वर के समक्ष खड़ा रह सकता हूँ। You might have heard this phrase or this sentence, which see, bad people, they go to hell.
और हमने शायद इस वाक्य को पढ़ा होगा कि जो बुरे लोग होते हैं No, वही this is not नरक a में जाते हैं। this is not a verse in the Bible. Just somebody has said like this: bad people will go to hell, ये कोई बाइबल का वचन नहीं है, लेकिन किसी ने ऐसा कहा है कि जो बुरे व्यक्ति होता है या बुरे लोग होते हैं वही नरक में जाते हैं। and where will the good people go? लेकिन अच्छे लोग कहाँ जाते हैं? They also go to hell. वे भी नरक में जाते हैं। Now, who will go to heaven? लेकिन स्वर्ग में कौन जाएगा? Only perfect people will go to heaven. केवल सिद्ध लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। And what we have to remember is Jesus makes us complete and perfect because of the work that He has done for us. और हमें ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही पूरी तरह से हमें पूर्ण करता है और सिद्ध करता है उस कार्यों के द्वारा जो उसने हमारे अंदर किए हैं। Is there anything to boast now? तो क्या हम किसी और बात पर घमंड कर सकते हैं? Can I say I've overcame so many sins, or I'm better than anybody else? If I say that, I'll be rejected before God. क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने कितने पापों पर जय जय पाया है? नहीं, अगर मैं इस तरह से कहता हूं तो परमेश्वर मेरा इनकार करेंगे। That's why we read in Romans 3:27, where is the boasting? It is eliminated. इसलिए हम रोमियो 3 अध्याय उसका 27 वचन में पढ़ते हैं कि वो घमंड कहाँ रहा, It वो is नकार excluded. दिया गया, वो निकाल दिया गया। By what kind of law? किस तरह की व्यवस्था के द्वारा? Of works? No, क्या कामों के व्यवस्था के द्वारा? नहीं, but by the law of faith. लेकिन विश्वास की व्यवस्था के द्वारा। We have to receive from God this justification, this fact that I'm clothed with the righteousness of Jesus Christ. देखिए, मुझे इस धर्मी ठहराए जाने को परमेश्वर के से स्वीकार करना होगा कि उसने हमें इस धार्मिकता को पहनाया है। So that is a very, very important truth in the new covenant. और ये नई वाचा के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। Because the growth in Christian life comes only when we are in fellowship with Jesus Christ. और देखिए, मसीह जीवन के अंदर जो बढ़ना है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता के द्वारा आता है। And no man can come into God's presence by whatever works he has done. God has to make us perfect. कोई भी मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा या अपने कोई भी अच्छे कार्यों के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ सकता। परमेश्वर को उसे सिद्ध करना होगा। That is what God has done through Jesus Christ to each one of us. और यही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया है। That I have to receive by faith, that really be deeply thankful to God for that. और इन बातों को मुझे विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। So I just said about two things. One is two great covenant truths. One is He will never remember my sin again. Second, I can be justified by faith. और दो सत्य मैंने यहाँ पर बताए, और दो नई वाचा के जो सत्य है, और पहला है कि परमेश्वर मेरे पापों को अब स्मरण नहीं करेगा या याद नहीं रखेगा, और दूसरा है कि प्रभु मुझे अपनी धार्मिकता को पहनाता है Now, या मैं third धर्मी ठहराया गया हूँ। third one I want to share is baptism with the Holy Spirit. और तीसरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। See, this is something which is so important for us, because और without this, Christian life is impossible. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर जो मसीह जीवन है वो नामुमकिन है। So this we have to remember, this is also a gift from God. और हमें याद रखना है कि ये भी परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है या उपहार है। You cannot earn baptism in the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को कमा नहीं सकते। You cannot earn it by your works, by fasting and prayer and so many things. You cannot earn this from God.
हम इसे हमारे कार्यों के द्वारा नहीं कमा सकते, जैसे कि उपवास करना या कोई अच्छे काम करना, long इसके time द्वारा हम prayer. नहीं कमा सकते। We can read in Acts chapter 2, हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं, verse 38. उसका 38 वचन। We can read, Peter said to them, repent and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और वहां पर पतरस कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान दान पाओगे। See, if you can just remove that part of baptism, that is, I think all of those, or most of you who are hearing me might have taken baptism. देखिए, अगर हम उस भाग को, जो बपतिस्मा का भाग है उस वचन के अंदर, अगर उसे हम निकाल दे, मेरा विश्वास है कि जो भी मुझे सुन रहा है, आप सभी ने बपतिस्मा लिया है। And then we can read like this, repent and you shall receive the gift of the Holy Spirit. तो अब जब हम उसे निकाल देंगे तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि मन फिराओ और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। So just imagine somebody is standing behind me and is offering me a gift. कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा है और मुझे एक तोहफा या उपहार दे रहा है, Now, as long as I don't turn towards him, I cannot get that gift. और अगर मैं उसकी ओर मुड़ पीछे नहीं मुड़ता तो मैं उसे नहीं ले सकता। So the first condition is repent, that is complete turn around. तो उसका जो पहली शर्त है कि मुझे मन फिराना है, यानी कि मुझे पीछे मुड़ना है। And once I turn towards Jesus Christ, next thing I have to do is Luke chapter 11, verse 10 and 10 to 13. और एक बार जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के और मन फिराया है, या प्रभु यीशु मसीह के पीछे मुड़ा है, Then next thing what is very important is we can read in Luke chapter 11, verse 9 onwards. और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी है वो हम लूका उसके 9 अध्याय में पढ़ सकते हैं। Chapter 11 माफ कीजिएगा, 11 अध्याय में and उसके verse 9 9 वचन से onwards. आगे पढ़ सकते See, if you read in verse 13, there is written, Jesus is telling about the Holy Spirit, which the Heavenly Father will give. हैं। और वहां पर 13 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं, जो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देगा। So what should I do? तो मुझे क्या करना है? Verse 9 onwards is written, I say to you, ask. And margin says, keep on asking. It shall be given और to you. 9 वचन में लिखा है कि मांगे, और वहां पर मार्जिन में कहा गया है कि मांगते रहिए तो आपको And, दिया जाएगा। and I want to read like this, ask, keep on asking, Holy Spirit will be given to you. और मैं इस तरह से पढ़ना चाहूंगा कि मांगो और मांगते रहो, तब पवित्र आत्मा आपको दी जाएगी। Seek, keep on seeking, you shall find the gift of the Holy Spirit. और दूसरा, ढूंढो और ढूंढते रहो, तब आप पवित्र आत्मा का तोहफा या उपहार पाओगे। Knock, keep on knocking, if that door to the Holy Spirit will be open to you. खटखटाओ और खटखटाते रहो, तब वो द्वार जो पवित्र आत्मा का है आपके लिए खोला जाएगा। Verse 10, everyone who keep on asking will receive the Holy Spirit. 10वां वचन, जो कोई भी मांगते रहता है वो पाएगा, Everyone who keeps on seeking will find the और gift of the Holy Spirit. जो कोई भी उसे ढूंढता रहेगा वो पवित्र आत्मा का तोहफा उपहार पाएगा। Everyone who keeps on knocking, that door to the Holy Spirit will be opened. और जो कोई भी खटखटाते रहेगा तो पवित्र आत्मा का वो द्वार उसके लिए खोला जाएगा। Then he says the example, suppose one of your fathers is asked by his son. The son is asking the father, please give me a fish. The father will not give a snake to him.
और उसके आगे वो एक उदाहरण देते हैं कि तुम में ऐसा कौन पिता होगा जो जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे। And he says in verse 13, we are evil fathers, but God is a good father. He will give only good gifts to his children. How much more he will give? Heavenly Father will give gift to the Holy Spirit to everyone who asks him. और 13 वचन में वो कहता है कि हम एक बुरे पिता है, लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो बहुत ही अच्छा पिता है, और अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। I want to tell everyone who is listening to me, who have not got the assurance of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, ask for this thing continuously. Seek and knock for that. और देखिए, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर उसे पवित्र आत्मा मिलने का विश्वास नहीं मिला है, या उसे एश्योरेंस नहीं मिला है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मांगते रहो और आपको मिलेगा। And we read in John chapter 7 another condition, thirst for it. और यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं कि हमें उसके लिए प्यास होनी चाहिए। That means, Lord, at any cost, I need it in my life. उसका अर्थ है कि प्रभु, किसी भी कीमत पे ये मुझे चाहिए। I'm ready to pay any price, but I need this gift of the Holy Spirit. मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का उपहार या तोहफा मुझे चाहिए। And we read in Romans 12 about submitting a surrendered life. All our body, our thoughts, our tongue, our hands, our ears, our aim, ambition, everything we have to surrender to God. और रोमियो 12 में हम पढ़ते हैं कि हमें एक समर्पण का जीवन चाहिए, यानी कि हमें हमारे जीवन को हमने समर्पित करना चाहिए, हमारे जुबान को, हमारी आंखों को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, यानी कि पूरी तरह एक समर्पित जीवन हमें जीना है। So in the Old Testament, when we read that when everything is put on the altar, fire from heaven will come and burn the sacrifice. देखिए, पुराने नियम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब सब कुछ उस वेदी के ऊपर चढ़ाया जाता था, तो स्वर्ग से एक अग्नि आकर उसे भस्म करती थी। See, imagine I've got some areas in my life. I'm saying, see, I want to do my own will. I want to have my own interest. God will not give the gift, the देखिए, baptism of the Holy Spirit to such a person. कल्पना कीजिए कि कुछ क्षेत्र में आप कहना चाहते कि यहाँ पर मैं केवल अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ और मैं अपने अनुसार चलना चाहता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं देंगे। So what God wants is total surrender. परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पित हो। So just think of these four things which I said. इन 4 बातों के विषय में विचार कीजिए जो मैंने कही। Repentance. मन फिराना, Second, asking continuously. मांगते रहना, निरंतर Third, मांगते रहना, thirst for the Holy Spirit. और तीसरी बात कि पवित्र आत्मा के लिए प्यास रखना, Total surrender of our life to और Jesus Christ. चौथी बात है कि पूरी तरह से समर्पित जीवन। If these four things are true in your life, अगर ये 4 बातें आपके जीवन में सच है, तो you can receive the gift of the Holy Spirit by faith from Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के तोहफे को विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। See, please remember that it's not some electric shock which comes. The Bible never tells of any great feelings or electric shock and things like that. देखिए, ये याद रखिए कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक की तरह आपको महसूस नहीं होगा, या कोई बड़ी भावना आपके अंदर नहीं आएगी। बाइबल ऐसे किसी भावना या इलेक्ट्रिक शॉक के विषय में नहीं बताती। We can receive the gift of the Holy Spirit only by faith. हम पवित्र आत्मा का उपहार केवल विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं। We can read that. I want to show you that in Galatians chapter 3. मैं इसे आपको गलतियों उसका 3रे अध्याय में दिखाना चाहूंगा। 3 verse, 3 times
Holy Spirit is repeating these things again and again. यहाँ पर 3 बार पवित्र आत्मा इसे बार बार दोहरा रहा है। We can, first of all, in verse 2, chapter 3, verse 2 is written, this is the only पहले thing I want to find from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or hearing with faith? और पहली बात जो है वो तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। Again, he is asking another time in verse 5. और फिर एक बार वो वचन 5 में पूछ रहा है, We can read, brother. जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पे विश्वास से ऐसा करता है। Third time he's telling the same thing in verse 14. और तीसरी बार यही बात वो 14 वचन में कहता है, In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promise of the Spirit through faith. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। See, God told Abraham, in you all the nations will be blessed. देखिए, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तुझ में सारे जो देश हैं, सारे जो नेशंस है वो आशीषित होंगे। You know how it is fulfilled today? आप जानते हैं ये आज कैसे पूरा होता है। It is as I receive the gift of the Holy Spirit, and as each one of us receive the gift of the Holy Spirit, कि जैसे मैं पवित्र आत्मा का दान पाता हूं और इसी तरह हम सब जब पवित्र आत्मा का दान पाते हैं या उपहार पाते हैं, and as we meet different people, और जैसे जैसे हम अलग अलग व्यक्तियों से मिलने लगते हैं, the blessing of Abraham comes to all these people through the Holy Spirit. और अब्राहम की आशीषें उन व्यक्तियों तक भी पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचती हैं जिनसे हम मिलते हैं। Today, all the nations will be blessed through the gift of the Holy Spirit. आज सभी देशों के या सभी राज्यों के जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा के दान के द्वारा आशीष पाते हैं। That is why we have to live in the fullness of the Holy Spirit. We have to receive the baptism of the Holy Spirit every day in our life. और इसीलिए हमने पवित्र आत्मा की पूर्णता के द्वारा जीवन जीना है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने अपने जीवन में पाना है। Because it is only through the gift of the Holy Spirit that I can become a blessing to other people. क्योंकि केवल पवित्र आत्मा के दान या उपहार के द्वारा ही मैं दूसरों के लिए आशीष ठहरूंगा। So I just told about 3 important truths of the new covenant. और मैंने नई वाचा के 3 महत्वपूर्ण सत्य को आपको बताया। I hope it was a blessing to you. और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए एक आशीष होगा। And maybe some other time I'll share some other great truths of the new covenant. और अगली बार हो सकता है कि मैं आपसे और भी जो नई वाचा के सत्य है उनको साझा करूंगा। See, these are things I believe many of us are aware of, know of. और ये वे बातें हैं जिनके बारे में हम सभी लोगों को पता है, But we have to be reminded of that again and again. लेकिन इसके बारे में हमें बार बार याद दिलाना होता है। Because our tendency is to go back to that old covenant life. क्योंकि हमारी ऐसी क्षमता है कि हम बार बार उस पुरानी वाचा के जीवन की ओर चले जाते हैं। We are such self-confident, self-reliant people that we tend to go back to that old covenant life. हम ऐसे स्वयं निर्भर या एक आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति है कि हम उस पुरानी वाचा की ओर चले जाते हैं। That's why people live in condemnation. That's why people live in discouragement. और इसी कारण लोग दोष भावना में रहते हैं और इसी कारण लोग एक दोष की भावना में रहते हैं। They are fearful. They are not secure in God's love.
वे भयभीत होते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित नहीं महसूस करते। That's why we have to be reminded of these things again. और इसलिए इन बातों को हमें बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है। Yeah, God bless. प्रभु हमें सहायता करे।